Assalamu alaikum students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the first lecture of Mathematics Grade 4, Unit number 1, Numbers 200,000. First of all students, open your books and notebooks and listen to my lecture attentively. So in this lesson, we will learn about the place value, expanding forms, writing the number in words and writing the words in numerals. So, first of all, I will tell you about when you add 1 in 10 times. Look, this is 1, this is 1. When you add these two 1, it becomes 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 4, 3 plus 1, it's 4. 4 plus 1, it's 5. 5 plus 1, it's 6. 6 plus 1, 7. 7 plus 1, 8. 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. It's mean this is one number because you have only one number. So it's a one number. So when you add 10 ones, it's equal to 1/10. जब हम ones को जो है उसको 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक टेंथ बन जाएगा. नेक्स्ट, when you add 1000 10 times, like 1000 plus 1000, it's 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. When you add 1000 10 times, it's mean 10,000 equal 1/10,000. This is 1/10,000. So the next topic is place value. What's the place value? If you look, we will start from the right side. In the right side, the first one is ones, second is tens, third is hundreds, next is thousands, and the last one is 10,000s. So what's the place value of 1? If you look, this 1 is here, 1 is in 10,000s. After 10,000 you have 1, 2, 3, 4. You have 4 columns, so put zeros. So you put 1, 2, 3, 4, 4 zeros. So it becomes 10,000. Look, it becomes 10,000. What's the place value of 3? Look, 3 is here. After 3, you have 1, 2, 3. You have 3 columns. So you have to put 3 zeros. 1, 2, 3. So it becomes 3,000. Next you have, what's the place value of 5? If you look, 5 is here and 5 is in hundreds column. So after 5 you have 2 columns. 1, 2. So that's why I will put 2 zeros. So it becomes 500. Next, what's the place value of 4? Look, the 4 in tens column. When you put 4, after 4 you have only one column. So you have to put only 1 times 0. So it becomes 40. 40 is in tens column. Place value of 8. After 8, there is no column. So it means we don't need to put 0. So it's only 8. We read it as 13,548. प्लेस वैल्यू हमारे पास वो होता है कि हम लोग वंस, टेंस, 100,000, 10,000, दीज ऑल आर प्लेस वैल्यूज. हमें प्लेस वैल्यू बतानी है कि वंस कहाँ पे है, टेंस कहाँ पे है, हंड्रेड्स कहाँ पे है, थाउजेंड्स कहाँ पे है, 10,000 कहाँ पे है. अगर आप वंस में ये बॉल्स काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बॉल्स हैं. इट्स मीन द प्लेस वैल्यू ऑफ वंस इज 8. टेंस में हमारे पास 4 बॉल्स हैं. इट्स मीन
जो टेंथ है, टेंथ नंबर हमारे पास क्या है 4, और टेंथ नंबर हमारे पास क्या होता है 40. लाइक after number you put 10, so it becomes 40. For example, 50, 60, 70, 80, all these are tens number. But when you have a 100, in 100 you have two zeros, so it becomes 100, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900. When you have three zeros, so it becomes 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. And then when you have four zeros, so it becomes 10,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20, and so on. Okay, students? The next thing is, look, these are the numbers, place value of a red digit number. अब आपको red digit जो number है, आपको उसकी place value बतानी है, और आपको बताना है कि उस digit की value क्या होगी. Look, if you look this 4, there is no number after this 4. It means this is ones. The place value of 4 is 1. और इसकी हमारे पास value क्या बनेगी 4. Next हमारे पास है 1, 2, 3, 4, और जो 3 है वो हमारे पास क्या है रेड नंबर है, रेड डिजिट है. और इसके बाद हमारे पास एक नंबर है, इट्स मीन इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी टेंस, और ये नंबर क्या हमारे पास बनेगा 30. अब ये हमारे पास 2 है, 2 हमारे पास क्या है, 2 के बाद 2 डिजिट्स है, और ये हमारे पास क्या बनाएगा हंड्रेड्स. और जब हम 2 के बाद 2 जीरो लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू 200. थाउजेंड्स है, 1000 के बाद 3 नंबर है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1000, और जब हम इन पे जीरोस लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया 1000. नेक्स्ट 9, 9 के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स है, 4 जीरोस लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 90,000. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज look how you will expand a number and how you will write it. Look, if you look this example, in this column this is a ones column, and in this you have 2 balls, and in tens you have 7 balls, and in 100 you have 3 balls. So we can write it as, look, 3, and this is a 100 column, so you have to put 2 zeros, so it becomes 300 plus 70. This is a tens, so 7 balls, and after tens you have only one column, so you have to put 1 0, so it becomes 70 plus, next this is a ones, after this there is no column, so it's mean you don't need to put any zero, so it becomes 2. So the number is, you can read it like 372, and you can read it 372, 372. Now the next topic is expanding. What's the expanding? Write the following expanded form in numbers. एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास ये होता है कि हम लोग हर नंबर की जो है वो प्लेस वैल्यू में लिखा होता है, आपने उसको क्या करना होता है कि एक नंबर की फॉर्म में लिख देना है. लाइक लुक, दिस इज 30,000 एंड दिस इज 4,000, दिस इज 260 प्लस 5. अब हम ये हमारे पास क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने हर नंबर को सेपरेटली उसकी प्लेस वैल्यू में लिखा हुआ है. अब हम इसको इकट्ठा कैसे लिखेंगे, एक नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे. अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक स्टेप बताऊंगी कि हम लोग जब 5 और 6 डिजिट नंबर को लिख रहे होते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास चीज है, वो क्या है कि हमें थाउजेंड्स और हंड्रेड्स डिजिट को सेपरेट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़नी होगी. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास है हंड्रेड्स, ये हमारे पास यहाँ पे बना था 1000, तो मैंने उसके दरमियान में क्या है यहाँ पे एक स्पेस छोड़ी है, तो आपको भी इसी तरह से स्पेस छोड़नी है.
और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 34,265 34,265। मैंने क्या किया कि टेंस और जो 10,000 और 1,000 जो है उसको मैं इकट्ठा करके लिखूंगी। 30,000 प्लस 4,000, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 34,000। नेक्स्ट हमारे पास है 200 65। जब मैं टेंस और वन को इकट्ठा करके लिखूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 65। 34,265। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है कि आपको नंबर फॉर्म में दिया होगा, आपने उसको वर्ड्स में लिखना है। Look, the first example is, look, this is ones, this is tens, this is 100, this is 1,000. So, first of all, I will expand it. So, it's become 2,650 plus 8. जिस नंबर के पास जितने डिजिट्स होंगे आप उस इतने जीरो लगा दें। लुक, 6 के बाद 2 डिजिट्स थे, मैंने 2 जीरो लगा दिए। 5 के बाद 1 जीरो है, मैंने 1 जीरो लगा दिया। 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इट्स मीन हम लोग कोई डिजिट या कोई जीरो नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। मैं इसको कैसे लिखूंगी? 2,658. The next example is, if you look, this is ones, tens, hundreds, thousand, 10,000. So, मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। 10,000, 1 2 3 4, 4 digits, 4 zeros, plus 2, then 3 digits, 3 zeros, plus 5, then 2 digits, 2 zeros, plus, look, यहाँ पे हमारे पास टेंस की जगह पे क्या है? जीरो, मतलब टेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने उधर जीरो लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 9। आफ्टर 9 देयर इज नो डिजिट, सो इट्स मीन यू ओनली हैव टू राइट 9। अब मैं इसको रीड कैसे करूंगी? 12,509, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग जीरो टेंस नहीं कहेंगे, हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है ना उसको रीड करने की, तो हम क्या करेंगे? 509। अब नेक्स्ट क्या है? राइटिंग इन न्यूमरल्स। अब आपने क्या करना है? राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। अब आपने वर्ड्स में आपको दिया होगा और आपने उनको न्यूमरल्स में लिखना है, मतलब आपने उनको नंबर्स में लिखना है। फर्स्ट हमारे पास है 3,426। लुक, 3,426। अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 3,000 में हमारे पास 3 जीरोस होते हैं। 400 100 में हमारे पास 2 जीरोस होते हैं। एंड 20 में हमारे पास 1 जीरो होता है, और 6 अकेला लिख लेंगे। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को मैं क्या करूंगी? इकट्ठा करके लिख लूंगी, मतलब जीरो स्किप कर देंगे और हम नंबर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 3 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 4 के बाद 2 एंड 6। 3,426। नेक्स्ट हमारे पास है 83,255। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगी। 80,000 प्लस 3,000 प्लस 255। एक्सपेंड हम लोग सेपरेटली करते हैं हर नंबर को, मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10,000 को करेंगे, फिर हम उसके बाद जो 1,000 होगा उसको कर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 100 वाले को लिखेंगे, फिर हम उसके बाद टेंस वाले को लिखेंगे, और फिर हम उसके बाद वंस वाले को लिखेंगे। इस तरह से करके हमने एक्सपेंड कर लिया। अब एक्सपेंड करने के बाद क्या करना है हमने कि इन नंबर्स को हम इकट्ठे करके लिख लेंगे, जीरो को खत्म कर देंगे।
जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म के जो जीरोस होते हैं उनको खत्म करके नंबर्स को लिख लेते हैं. सो लुक 83,255. So now students, you have a homework. Do all the questions from page number 3 till 6 on your books. Okay student, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.